that was one key. If you want the best faculty, if you want the topmost faculty, you have to go to Kota. Now that is not the case, क्योंकि people are understanding कि यार बाकी cities में भी options है, बाकी cities में भी coachings है, बाकी city में भी similar level of students है, preparation है, so even the faculties are staying in the different cities. So hello everyone. मेरा नाम प्रीतेश है. I'm your host and I'm an IIT Delhi computer science graduate. I'm also the founder of College and director of Function School of Technology. College एक प्लेटफॉर्म है जेई के लिए प्रिपेयर करने के लिए. यहाँ पे you get a monthly pass for 17 rupees only. You get access to 1,000+ JEE tests, live all India exams, materials, and also you can join our WhatsApp community, WhatsApp group with IIT JEE toppers and quota teachers and toppers from across coachings. You can go to collegehour.com and check it out. But आज हम बात करेंगे with Arpit Parikh. Arpit Parikh is an IIT Bombay graduate. He comes from Kota. He's lived all his life in Kota. Went to IIT Bombay, then studied BTech and did engineering there. And after that, he has taught a lot of students for IIT JEE. He's taught 1,000 से ज्यादा बच्चों को पढ़ाया है IIT JEE के लिए across Kota, Mumbai, Lucknow, across multiple cities. And in fact, अर्पित के पढ़ाए हुए कुछ बच्चे ना top 100 ranks भी निकाल कर लाए हैं JEE में. Multiple students have cracked top 100 ranks in JEE that Arpit has taught. So हम बात करेंगे इन सभी चीजों पे अर्पित से. Arpit has reached out to more than 10 lakh students in his company Ed Uncle जो अर्पित ने स्टार्ट करी थी. कोटा बेस्ड कंपनी थी, खुद से भी स्टार्ट करी. एंड राइट नाउ अर्पित इज लीडिंग उत्कर्ष क्लासेस. तो आज हम अर्पित से बात करेंगे कि भाई व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन कोटा एंड कोचिंग्स इन अदर सिटीज. व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन दो स्टूडेंट्स जो टॉप 100 या टॉप 1,000 रैंक्स क्रैक करते हैं एंड उन स्टूडेंट्स के बीच में जो रैंक्स नहीं निकाल पाते हैं जेई में. हम इन सभी चीजों पर बात करेंगे अर्पित से. लेट्स. Hey Arpit, thank you for coming on the podcast, man. Hi Pritesh, how are you? I'm good, Arpit. Arpit, so now start करने के लिए ना, this podcast is by College and College क्या है कि we have a monthly pass system where anyone can buy the monthly pass for 17 rupees and they get access to 1,000+ mock tests, live all India tests, PDFs, notes, DPPs, and previous year question papers and solutions and all that. So I want to understand, to start with, Arpit, I want to understand your thoughts on this. Yeah, so see, I did go through the website, and couple of things which really inspired or was impressive. One was the price point, obviously. Matlab, there are so many students who are not able to afford to go to Kota or prepare with a fees of lakhs of rupees every year. So that's 17 rupees per month, or maybe let's say 200 rupees per year. That's great. That's wonderful. Yeah. Secondly, if I'm studying in a particular coaching, so teacher is teaching me something and then they are asking the same thing again and again in that test. So obviously I'm doing well. But when I get a chance to prepare with some other questions, some other set of questions, so that really gives me an idea of real exam where questions will not be obviously coming from my class book or my class notes. So this is a wonderful idea, and surely I'm not 100% sure how much traction you guys are getting, but I'm 100% sure it will be a great success going forward. Awesome man, awesome Arpit. So Arpit, start करते हैं एक थोड़ा सा इंट्रो के साथ एंड थोड़ा सा Sure. जर्नी के साथ जो Hmm. रही है आपकी, मतलब over the last many years. Sure. So basically, see, for the audience, I'm born and brought up in Kota, and specifically, अगर NEET और JEE के students की बात करें, तो that's like Makkah for the students. When I was about like 10, 12 years or so, that was the first time when I got in touch with the students who were preparing for these exams. We were keeping them on paying guests, and every Sunday they used to have this weekly test, and they used to come back and check कर रहे थे कि how many marks they are getting or which question is correct, which question is incorrect. And ये कौन obviously सी क्लास की school बात कर रहे हैं Arpit? So I was in 6th class, I guess, 5th, 6th class, right? Fifth, And sixth में this is you got exposed to ये जेई का जो पूरा इकोसिस्टम है उससे, है ना? Yeah. And not just that, the one thing which was very wonderful was the objective question paper or objective set of questions. So स्कूल में तो अपना सारा आंसर राइटिंग ही होता था, आंसर लिखते थे, बट मुझे बहुत बेकार लगता था वो, ऑनेस्टली स्पीकिंग, कि यार टू द पॉइंट, जैसे मैथ्स के क्वेश्चन की बात करें, इफ आई कैन सॉल्व इट एंड गेट द आंसर ओनली, व्हाई डू आई नीड टू शो यू द कंप्लीट स्टेप्स? आंसर अगर जो भी है मेरा डायरेक्ट आंसर आ रहा है, व्हाई डू यू नीड द कंप्लीट स्टेप? एंड देन मुझे बहुत फैसिनेटिंग लगा कि यार ये बहुत अच्छा ऑप्शन है कि बस मैंने आंसर टिक किया और काम हो गया. So that was the first exposure, and from that moment I got very
इंट्रीग्ड विद दिस कि यार ये फ्यूचर है, मतलब यही करना है लाइफ में, दिस इज व्हाट आई नीड टू डू, दिस इज आई वांट टू डू। ठीक है। तो दैट वाज फर्स्ट थिंग व्हेन आई गॉट एक्सपोज्ड टू दिस, एंड आई गेस 2004 और 2005 वाज द फर्स्ट टाइम व्हेन आई स्टार्टेड गिविंग दीज टेस्ट, जो कि उस टाइम पे लाइक कोटा में बहुत सारी कोचिंग्स हैं, तो दे यूज्ड टू कंडक्ट मेनी स्कॉलरशिप टेस्ट और डिफरेंट प्राइज टेस्ट एंड सो ऑन सो फोर्थ। तो रैंडम में जो भी टेस्ट होते थे तो मैं अप्लाई करता था, यूज्ड टू गेट सम रैंक, सम प्राइज, कुछ कुछ। एक बार यू नो आई गॉट अ वॉच, एंड घर वाले बड़े हैप्पी हुए कि यार घड़ी जीत के लेके आया बच्चा, एंड सो ऑन सो फोर्थ। So that was the first exposure. Obviously then maths अच्छा था, तो 11th क्लास में आई थॉट कि यार 11th मैथ्स लेते हैं, जेई करते हैं। आई वेंट इनटू ए कोचिंग, कोटा में ही एक पर्टिकुलर कोचिंग का स्कॉलरशिप टेस्ट दिया, सो जॉइन देयर। दैट्स वेयर आई मेट यू एज वेल। सो लॉन्ग टाइम अगो, आई गेस 15 years or so, 15-16 years. यस यस, Uh, 10-15 साल हो गए। so gave JEE, IIT JEE in 2009, got into IIT Bombay. So 4 years IIT Bombay, 2009 to 2013. While I was in JEE, while I was in IIT, so 4 साल में जो exposure था wonderful, मतलब I think सारे IITs obviously awesome है, सारे IITs में you get to meet wonderful people. But the one thing which was great about IIT Bombay was the people over there. मतलब other than the professors जो पढ़ा रहे थे, या जो content पढ़ रहे थे, या जो पूरा का पूरा जो इंजीनियरिंग किया, उससे ज़्यादा मुझे लगता है जो लोगों से मिले, जो लोगों से नेटवर्क बना, जो लोगों से इंटरेक्शन हुआ, दैट वाज़ मोर लर्निंग, एंड दैट वाज़ अ ग्रेट लर्निंग एनवायरनमेंट, राइट? वहीं पे फिर एक जो डायरेक्शन मिली, आई वुड से मेरे फ्यूचर को या करियर को, सो दैट वाज़ कि आई वांटेड टू गो इनटू सिविल सर्विसेज, कि यार देश के लिए कुछ करना है। देयर वर अ लॉट ऑफ सीनियर्स हु वर डूइंग दैट। So from there, 2013 में when I completed my graduation, went to Delhi, and Delhi में then I prepared for UPSC for a couple of years, 13 to 15. I gave my prelims, I gave my mains, as well as got a call for interview. 2015 के एंड में, आई गेस दिसंबर 15 में आई गेव माय मेंस। तो 15 के बाद जब प्रीलिम्स सॉरी मेंस दिया, उसके बाद आई वेंट बैक टू कोटा कि यार ठीक है, अभी इंटरव्यू के लिए 3-4 महीने बाद आएगा, तो तब तक 2-3 महीने घर पे बिताते हैं, बिकॉज ऑलरेडी घर से काफी टाइम दूर हो गया था। And I did get a call for interview but could not clear means mein number. I cleared the cutoff, but just about cleared the cutoff. It was not good enough for getting into any civil services. uh, कहीं ना कहीं मतलब obviously I wanted to give it another chance, give it another try, but that point of time थोड़ा सा, I would say maybe financial conditions, family financial conditions, maybe some other social conditions, social norms कि यार 25 साल का हो गया है, अभी तक नौकरी नहीं कर रहा है। सब आई एम एक्चुअली द एल्डेस्ट इन माय फैमिली, तो फैमिली में इतने पैसे खर्च कर दिए, आईआईटी कर लिया, फिर भी कुछ कमा नहीं रहा है, एंड सो ऑन सो फोर्थ। सो आई थॉट कि यार ठीक है, थोड़ा जॉब कर लेते हैं, थोड़े पैसे कमाते हैं। सो अगेन, एंड बचपन से जो आइडिया था पूरा कोचिंग का था, पूरा उस पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में रहे। सो आई जॉइंड अ कोचिंग इंस्टीट्यूट इटसेल्फ। आई जॉइंड एज ए फॉर अ बिजनेस स्ट्रेटेजी for expansion and growth. So from 2016 2017, couple of years, I worked in a business strategy division. We worked on various centers, कौन सी सिटी में जाना है, कहाँ पे कैसे एक्सपेंड करना है, कैसे स्टूडेंट से कांटेक्ट करना है, कैसे how to make a perfect product for the students, specifically for NEET and JEE students. 17 में, by end of 17, I thought कि यार I'm working on bringing students, but मैं students से और ज़्यादा interact करना चाह रहा था, and the people who are interacting with students most was obviously the faculties. तो and obviously JEE भी पढ़ाए थे, physics मेरे को बहुत पसंद था, so I became a physics faculty by the end of 2017. 2017 to 2020, about 3 years or so, I taught what about 1200, 1300 students in JEE, specifically for JEE. Mumbai में पढ़ाया, then I taught in Kota, I got taught in Lucknow as well. 3 different cities, 3 different places, different type of students, different type of results. The best part was I got like what 3 or 4 students in top 100 ranks, multiple students in top 1000 ranks in different centers. So that was wonderful. By the end of 2020, I realized कि यार अच्छा कर रहे हैं, बच्चों के साथ भी इंटरेक्ट कर रहे हैं, लेकिन I do not have that much control over the whole प्रोडक्ट एज आई वुड लाइक। आई डू नॉट हैव दैट, मतलब जो मैं करना चाह रहा हूँ, जितना जिस लेवल का प्रोडक्ट या जिस लेवल से मैं बच्चों से इंटरेक्ट करना चाह रहा हूँ, जिस लेवल का प्रोडक्ट बच्चों को देना चाह रहे हैं, वो नहीं दे पा रहे हैं।
सो रियलाइज कि यार अगर वो करना है, इफ आई वांट टू एक्चुअली गिव माय एग्जैक्ट ideas or replicate my exact ideas, I need to have my own 100% control. So 2020 में with couple of my friends, one from my school days and one actually my cousin, first cousin. So three of us were discussing once upon a time and we came up with an idea. So we started our own startup in 2020 named Ad Uncle. And we again started from Kota only. So idea was that, as I said, ki Kota is great for JEE and NEET and many other entrance exams. But after you complete your graduation, after you have done your maybe bachelor's, BA, BCom, BSc, or any other bachelor's, and you want to do further studies in India, there are multiple examinations. And even if you want to go for foreign studies, IELTS or any other exam, you will find a lot of coaching, so a lot of study material for that. But there is a very big lack of material, study material, as well as coachings for higher education in India itself. So if you have done your BSc and you want to do MScs, there are exams, right? IIT JAM is one such exam, but there are not enough people who are preparing students for that. There is a big gap over there, and that is where we thought that we'll create a niche for ourselves. So we worked there for 2.5 years. We built a product. We got to about 3.5 million plus students. We had about Mhm. 50,000 by 2022. We had about 50,000 paid subscribers on our mobile app. We had 1.5, 1.6 lakh downloads for mobile app and so on and so forth. So we were doing Mhm. quite well. And at that time, we got a one good exit option by the end of 2022, December 2022. So we decided among ourselves that we want to, move on to new things. We want to try something else. So January this year, I moved on to Utkarsh classes, where I'm actually leading the overall operations, heading the overall operations. And again, Mhm. the good thing over here is that I actually am looking after each and everything from the day student join till the student is actually out of the system. So I'm planning and executing the whole of the structure, whether it's academic or non-academic. So that is something I'm working on. Wonderful to work here and hopefully creating difference in multiple students' lives. ठीक है. Yeah, अर्पित So this is बहुत last बहुत 20 years. इंटरेस्टिंग जर्नी है अर्पित. यस यस, बहुत इंटरेस्टिंग जर्नी है. बट अर्पित, एक चीज ना, मतलब बार बार कांस्टेंट थ्रेड है जर्नी में, विच इज obviously JEE preparation bit, and obviously that starts with Kota, right? The fact that you belong to Kota, Yes, and Kota को आपने देखा है बचपन से, probably जब Kota was not even a known city on the face of the map of India, बिल्कुल. तब से अभी में Kota में क्या डिफरेंस है? क्या, how is it different? How is Kota of say 20 years back different from Kota of today? सो ऑब्वियसली यार वन डिफरेंस तो विच यू जस्ट सेड ना कि पहले कौन बच्चे आते थे, पहले बच्चे आते थे जो कोटा के आसपास के थे, जो मे बी इवन राजस्थान और मे बी गुजरात, एमपी वगैरह. सो वन थिंग इज देयर इज अ ट्रूली नेशनल स्टूडेंट और ग्लोबलाइजेशन इन कोटा हैपनिंग, अब बिहार से, झारखंड से, वेस्ट बंगाल से, कर्नाटक से, पता नहीं कहाँ कहाँ से बच्चे आ रहे हैं. एंड दे व्हेन दे कम, दे डोंट ओनली कम देमसेल्फ, दे ब्रिंग देयर कल्चर विद देम. सो कोटा में अगर आप जाओगे ना, सो देयर इज सच अ डाइवर्स कल्चर. यू विल फाइंड ईच एंड एवरी, मतलब देयर विल बी सो मेनी लैंग्वेजेस बीइंग स्पोकन इन कोटा, जो पूरे इंडिया में हर जगह की लैंग्वेज वहां आके लोग बोल रहे हैं. सो दैट इज ग्रेट. मतलब देयर आर सो मेनी स्टूडेंट्स हु आर टॉकिंग टू ईच अदर, इंटरेक्टिंग विद ईच अदर, जो मैं मुझे लगता है जो मैंने कॉलेज में जाके किया, दैट वाज द फर्स्ट टाइम जब मैंने पूरे अक्रॉस इंडिया के बच्चों के साथ इंटरेक्ट किया, या अक्रॉस द इंडिया के जो स्टूडेंट्स थे उनके साथ बात करने का मौका मिला. So that is something which is happening in Kota at 11th, 12th level. So that is wonderful, number one, obviously. And that is a big change. Second is a lot of commercialization. मतलब obviously जब I would say जब मेरा पहला interaction था coaching से, that was 2001. So that is what 22 years ago. सो उस 20-22 साल में बहुत ज़्यादा कमर्शियलाइजेशन हो गया है. एट दैट टाइम बच्चा आता था एंड बच्चे के पास कुछ ऑप्शन नहीं था पढ़ने के अलावा. मतलब एवरीवेयर यू गो, वो या तो स्टडी मटेरियल मिल रहा है, कोचिंग है, क्लासेस है, या फिर बुक्स की शॉप है, स्टेशनरी है, सब यही है. बट आज की तारीख में देर आर सो मेनी अदर options, so many other things, as well as the coaching itself. They have commercialized a lot. मतलब पहले 100, 500, 1000 बच्चे होते थे. नाउ दे आर टीचिंग व्हाट 1 लाख प्लस स्टूडेंट, इवन सिंगल कोचिंग टीचिंग 1 लाख प्लस हम्म. स्टूडेंट. तो बहुत ज्यादा कमर्शियलाइजेशन हो गया. और कहीं ना कहीं आई वुड नॉट से कि कोचिंग्स आर एट टू बी ब्लेम्ड. They have to run such a big system, so they obviously have to have system. They obviously have to have those SOPs and work on those. So वो जो बच्चे के साथ एक वन ऑन वन इंटरेक्शन था, या बच्चे के साथ जो एक कनेक्ट था,
वो पूरी तरह से जा चुका है। अब पूरा एक कंपनी बन चुकी है, रादर देन वो एक कनेक्शन विद स्टूडेंट्स, और जो वन ऑन वन था वो हम्म। पूरा मिस हो चुका है। कुछ कर रहे हैं लोग, आई वुड से सम इंडिविजुअल कोचिंग्स और इवन बिग कोचिंग्स आर वर्किंग टू ब्रिंग दैट बैक, बट आई डोंट थिंक इतने बड़े स्केल पे इतना इजीली पॉसिबल है। तो एक एक स्टूडेंट के पर्सपेक्टिव से समझते हैं यार, है ना। एक हम्म, स्टूडेंट है, उसके पास चॉइस है कि मेरे लोकल में मैं लेट्स से लखनऊ से आता हूँ, या लेट्स से गोरखपुर से आता हूँ, या कोई स्मॉल टाउन है लेट्स से एमपी में, वहां से आता हूँ। एंड मेरे लोकल में एक कोचिंग है जो जेई की तैयारी कराती है, एंड एक कोटा जाने का ऑप्शन है मेरे पास। डिफरेंस है क्या, मतलब इस अगेन लॉट ऑफ स्टूडेंट्स विल डू एंड अप गोइंग टू कोटा। डिफरेंस है क्या, मतलब इज इट वर्थ टेकिंग दैट जंप, स्पेंडिंग दैट काइंड ऑफ मनी? कितना डिफरेंस है अगर है तो? करेक्ट। सो देखो, जब अर्ली ईयर्स थे ना, आई वुड से 2000 टू 2010 और मे बी 2015, there were two things which were very different between Kota or let's say Bhopal or Lucknow or any other city. The two things were, number one was faculty, कि यार इंडिया की बेस्ट फैकल्टी, इंडिया में जो बेस्ट फैकल्टी मेंबर्स थे जेई के, वो अपने आप कोटा जाते थे क्योंकि उनको अपने करियर ऑप्शंस वहां दिख रहे थे, एंड दे वर टीचिंग इन कोटा। So that was one key. If you want the best faculty, if you want the topmost faculty, you'll have to go to Kota. Now that is not the case, क्योंकि people are understanding कि यार बाकी cities में भी options है, बाकी cities में भी coachings है, बाकी city में भी similar level of students है, preparation है, so even the faculties are staying in the different cities. So let's say one faculty who was earlier मतलब based out of Lucknow, वो पहले पढ़ाने के लिए कोटा जा रहा था, now he is preferring कि यार मैं लखनऊ में पढ़ा देता हूँ क्योंकि लखनऊ में भी enough opportunities है। सो द फैकल्टी लेवल डिफरेंस इज नॉट सो मच, स्टिल है, मैं ये नहीं बोलूंगा, स्टिल आई वुड से कि बेस्ट फैकल्टी तो कोटा में ही है, बट हाँ, लखनऊ या जोधपुर या प्रयागराज और एनी अदर सिटी में भी 19-20 का ही डिफरेंस है। नाउ दैट डिफरेंस इज नॉट दैट बिग, राइट, नंबर वन। एंड नंबर टू वॉज द पेडागोगी, राइट। अर्लियर क्या था कि जैसे एक स्टैंडर्ड कॉन्सेप्ट है जो पूरा आज की तारीख में पूरे इंडिया में, डीपीपी, राइट, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स विच यूज्ड टू हैपन ओनली इन कोटा आज से 15 साल पहले। तो वो एक कॉन्सेप्ट था कि हर दिन हर सब्जेक्ट के 10 क्वेश्चंस करवाने हैं, बच्चे को जो कल पढ़ा है वो दोबारा रिवाइज करवाना है, एक प्रॉपर पेडागोगी को फॉलो करना है, एक प्रॉपर स्ट्रक्चर को, करिकुलम को फॉलो करना है, एंड एवरीथिंग एल्स। सो वो पहले सिर्फ कोटा में था, एंड वो ऑब्वियसली रिजल्ट दे रहा था, वो ऑब्वियसली रिजल्ट के पीछे एक बहुत बड़ा पार्ट था। बट आज की तारीख में वो ऑब्वियसली इवन दीज कोचिंग हैव टेकन दोस आउटसाइड। अगर आज एक कोचिंग है कोटा, बेस्ड आउट ऑफ कोटा, बट वो अलग जगह पे सिटी में सेंटर्स खोल रहे हैं, तो दे आर ऑब्वियसली यूटिलाइजिंग द सेम पेडागोगी, दे आर यूटिलाइजिंग द सेम स्ट्रक्चर। So structure wise, content wise, pedagogy wise, there is not so much difference, और faculty wise भी difference has become very small. एक डिफरेंस जो आज भी है वो है वहां पे कंपटीशन। जो कंपटीशन आपको कोटा में मिलता है विद द कलीग्स और विद पीयर्स, वो आपको और कहीं नहीं मिलता है, क्योंकि ऑब्वियसली मतलब बेस्ट आउट ऑफ बेस्ट आर कमिंग देयर, स्टूडेंट्स आर कमिंग देयर। सो उनके साथ जो कंपटीशन आपको मिलता है, उनके साथ जो आपकी रैंक बनती है, या उनके साथ जो आप सीख पाते हो, वो शायद आज भी आई वुड से इन एनी अदर सिटी इज मिसिंग, और शायद कभी हो भी नहीं पाएगा क्योंकि एवरी सिटी कैन नॉट हैव सो मेनी स्टूडेंट्स। सो वो एक मेजर तो डिफरेंस रहे। तो अर्पित, आई थिंक थोड़ा स्टूडेंट्स की बात करते हैं ना। मतलब आपके पढ़ाए हुए स्टूडेंट्स हैं, कुछ टॉप 100 में भी रैंक निकाले हैं, लाइक यू सेड राइट यस, अर्लियर। काफी सारे स्टूडेंट्स ने टॉप 100 में रैंक निकाला, तो उन स्टूडेंट्स में, जैसे उन स्टूडेंट्स की बात करते हैं, एंड एक एवरेज स्टूडेंट में, और या फिर एक स्टूडेंट में जिसका जेई नहीं निकल पाता है, उनमें कितना डिफरेंस दिखता है आपको? व्हाट डू यू थिंक इज द डिफरेंस, या क्या डिफरेंट है उन स्टूडेंट्स में, क्या स्पार्क है जो बाकी स्टूडेंट्स में नहीं दिखा? करेक्ट। सो देखो यार, couple of things here. One is obviously the amount of time or the hard work basically obviously creates a big difference. जो obviously मैं इवन मैं एवरेज बच्चे से बात नहीं करूंगा, मैं बोलूंगा टॉप 100 वाला और टॉप 500 और टॉप 1000 वाला। सो इवन एक जो 1000 रैंक लेके आ रहा है जेई में, द स्टूडेंट इज 100% वेरी ब्रिलियंट, मतलब उसके आईक्यू बहुत ब्रिलियंट है, ही इज वन ऑफ द टॉप मोस्ट स्टूडेंट्स इन द होल कंट्री। द डिफरेंस इज कितना टाइम वो दे रहा है। जो बच्चा टॉप 100 में है ना, दे आर गिविंग 15-16 आवर्स ए डे, मतलब दे आर पुटिंग अप ईच एंड एवरी movement of their that 2 or 3 years period, preparation time for one and only one goal, right? Obviously वो लोग थोड़ा 1 घंटा 2 घंटा चिल कर रहे हैं, मे बी स्पोर्ट्स खेल रहे हैं, मे बी मेडिटेट कर रहे हैं, मे बी दे आर यूटिलाइजिंग दैट टाइम फॉर समथिंग एल्स, बट दे हैव दैट गोल वेरी क्लियर इन देयर माइंड, दे हैव वेरी वन सिंगल गोल इन देयर माइंड, एंड दैट ऑब्वियसली क्रिएट्स अ डिफरेंस, राइट। मैं एवरेज बच्चे में और मे बी लेट्स से टॉप 100 टॉप 1000 में डिफरेंस करूं, तो वहां पे यार देयर इज ए क्लियर गैप, यू माइट से, फॉर द आईक्यू एज वेल। मतलब वो क्या होता है ना कि जैसे जब आप कोचिंग में जाते हैं, तो पहली बार में जब आपकी रैंक बनती है, 100% आप हार्डवर्क करके उसको और ऊपर ले जा सकते हो, और अगर आप हार्डवर्क नहीं करोगे वो नीचे भी चली जाएगी।
ऑल्दो जब आप पहली बार आते हो तो एक लिमिट जरूर सेट हो जाती है कि यार अनलेस ऑब्वियसली देयर वाज सम मेजर प्रॉब्लम और सम इश्यूज, एक लिमिट जरूर सेट होती है कि यार कितना आपकी अंडरस्टैंडिंग है जो आप पहले से करके आए हो, वो जो ऑब्वियसली विच डिपेंड्स अपॉन कि आप 10th क्लास तक क्या पढ़ के आए हो। 10th क्लास तक आपकी जो टीचर्स थे, स्कूल टीचर्स थे, उन्होंने क्या पढ़ाया है, 10th क्लास तक आपकी प्रिपरेशन है, 10th क्लास तक आप कितना अच्छे से तैयार करके आए हो। सो दैट ऑब्वियसली क्रिएट्स अ डिफरेंस। वो 2 साल की प्रिपरेशन में कवर अप नहीं हो पाता अप टू सम एक्सटेंट। सो वन इज ऑब्वियसली हार्ड वर्क, जितना ज्यादा हार्ड वर्क करता है स्टूडेंट, मतलब टॉप 100 वाला तो जबरदस्त हार्ड वर्क करता ही है, उसका उस पर्टिकुलर गोल के ऊपर हमेशा लगा रहता है। एंड सेकेंडली इज ऑब्वियसली दैट आईक्यू लेवल डिफरेंस वो रहता है। हाँ, ऑब्वियसली हार्ड वर्क हेल्प्स अ लॉट इन ब्रिजिंग दैट गैप। सो अर्पित, एक चीज समझते, लाइक अभी यू टॉक्ड अबाउट कि 10th तक क्या पढ़ के आया, क्या नहीं पढ़ के आया। सो मेरे को एक चीज ध्यान आ रही थी कि अब तो 10th के पहले ही कोचिंग चालू हो गई। अब तो एटलीस्ट जब व्हेन आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर आईआईटी, जब हम लोग जेई निकाल रहे थे, आईआईटी निकाल रहे थे, तैयारी कर रहे थे, तब तो 11वीं 12वीं था बस, दैट्स इट, ठीक है। और अब तो करेक्ट। सिक्स्थ सिक्स्थ आई डोंट नो, मतलब लास्ट आई नो इसके सिक्स्थ से चालू हो गया है। तो क्या वर्थ है क्या 6 से 10 तक करना? क्या उन बच्चों में डिफरेंस है जो 6 से 10 तक कोचिंग करके आए हैं और कोई सीधा आ रहा है? करेक्ट। सो दिस वाज द एग्जैक्ट आइडिया जो मैंने अभी अभी बोला कि यहाँ पे आके बच्चों को रियलाइज हुआ कि यार मैं हार्डवर्क कितना भी कर लूँ, लेकिन अगर मेरी 10th तक के बेस कमजोर है, अगर मैंने 10th तक ही अच्छा नहीं किया या मेरे स्कूल इतना अच्छा नहीं था, मे बी आई एम कमिंग फ्रॉम ए स्मॉलर सिटी और समथिंग, तो फिर मैं यहाँ की कितनी भी मेहनत कर लूँ 11th 12th में, शायद मैं उस लेवल पे या स्केल पे नहीं पहुंच पाऊंगा जो मे बी अच्छे स्कूल वाला बच्चा या जो कि बहुत अच्छे स्कूल से अच्छे से पढ़ के आए। जैसा एज यू सेड कि यार हम जब आए थे तो हम सब 11th 12th में आ रहे थे, राइट? सो वो हम्म। डिफरेंस नहीं था, डिफरेंस वाज मेजरली कि आपने स्कूल में कितना पढ़ा। देन व्हाट हैपेंड, स्टूडेंट रियलाइज कि अगर मैं 2 साल पहले से तैयारी कर लूँ, 3 साल पहले से तैयारी कर लूँ, तो आई माइट बी एबल टू ब्रिज दैट गैप, आई माइट बी एबल टू कम एट दैट लेवल कि मैं 11th क्लास में बाकियों से आगे आ जाऊँ। सो अप टू सम एक्सटेंट दिस हेल्प्ड 100%, आई वुड से, जो कि मेरा खुद का एक पर्टिकुलर पर्सनल एग्जांपल लूंगा। आई वाज एबल टू डू बेटर देन अ लॉट ऑफ अदर स्टूडेंट जो मेरे सेम कैलिबर के थे। रीजन बीइंग मेरे को बहुत ज्यादा पहले से एक्सपोजर था द ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्विंग का, राइट? हम्म। जैसे एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्विंग एक बहुत स्टैंडर्ड ट्रिक होता है, ऑप्शन एलिमिनेशन। सो वो मैं 5 साल से कर रहा था, वो बच्चों ने आके पहली बार देखा था, क्योंकि 10th तक तो उन्होंने सब्जेक्टिव देखा था, और मेरे को ऑप्शन एलिमिनेशन 5 साल पहले से आता है, क्योंकि मैं कहीं ना कहीं वो चीज ऑलरेडी कर रहा था। तो दैट डेफिनेटली हेल्प्ड, मे बी नॉट इन माई स्किल सेट, सॉरी, मे बी नॉट इन माई knowledge base, but 100% in my skill set. So that definitely helps, मतलब अगर आप पहले से उस पर्टिकुलर एनवायरमेंट में हैं, बट इट हेल्प्स ओनली इन वन केस कि आपका गोल तभी बहुत क्लियर है। ऑल्सो आई वुड से मे बी 9th 10th 6th 7th क्लास में तो फर्क नहीं पड़ता है, मतलब उस लेवल पे तो वो ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव और इतना ज्यादा डिफरेंस ही नहीं क्रिएट हो पाएगा, क्योंकि सिलेबस इतना कम है, या नॉलेज बेस इतना कम है कि आप 6th क्लास वाले को 11th क्लास का सिलेबस तो वैसे भी नहीं पढ़ा सकते हो। सो आपको एट द एंड ऑफ द डे 6th क्लास स्टूडेंट विल स्टडी फॉर 6th क्लास ओनली। एंड नॉलेज बेस में चाहे वो गवर्नमेंट स्कूल का बच्चा हो, चाहे वो प्राइवेट स्कूल का, चाहे वो डीपीएस का हो, नॉलेज बेस में इतना डिफरेंस नहीं आ पाएगा, और ना ही अदर किस एनी अदर स्किल सेट में। 9th 10th आई एम डेफिनेटली ऑफ द ओपिनियन कि हाँ, वहां पे स्किल सेट्स में डिफरेंस आने लगता है। यू बिकम मोर ओरिएंटेड टुवर्ड्स ऑब्जेक्टिव अप्रोच ऑफ क्वेश्चन सॉल्विंग, यू बिकम मोर ऑब्जेक्टिव इन योर एनालिसिस एज वेल। तो वो थोड़ा सा हेल्प करता है, 100% हेल्प करता है। आई थिंक अर्पित, एक चीज ना, मतलब व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट दिस ना, कि हेल्प तो करता ही है, ऑब्वियसली हेल्प करता है अगर आपने कुछ टाइम बिताया तो, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। बट एक एक ना बहुत जेन्युइन कंप्लेन आती चल जा रही है अब ओवर द लास्ट फ्यू इयर्स में, बहुत बार नोटिस करा है, बहुत सारे लोगों ने कंप्लेन रेज करा कि आईआईटीज ना धीरे धीरे इलीटिस्ट होते चले जा रहे हैं। बिल्कुल। टॉप कॉलेजेस जो इंडिया के ना, वहाँ पे टॉप कॉलेजेस में ना, जो हमारे टाइम पे कॉमन नहीं था, प्रॉब्ली आई स्टडीड एट दिल्ली फ्रॉम 2009 to 13, सेम आई बिलीव यू स्टडीड एट आईआईटी बॉम्बे, सेम पीरियड। हमारे टाइम पे ऐसा नहीं था, ऐसा नहीं था कि भाई इट वाज फुल ऑफ अपर मिडिल क्लास या अपर क्लास पीपल। अब चेंज होता चला जा रहा है, बिकॉज जो अफोर्ड कर पा रहे हैं 6वीं क्लास से कोचिंग, वही घुस रहे हैं, राइट? तो एक इलिटिस्ट कल्चर बनता चला जा रहा है आईआईटीज का। व्हाट डू यू थिंक ऑफ इट? No, no. First of all, see, I'm very much agreed, aligned with this. क्योंकि as you said ना, 9 to 13 when I was there, it was मोटा मोटा मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास, मतलब आई यस, वुड नॉट इवन यस। से, मतलब आई रिमेम्बर कि हम जब कैंटीन में खाना खाने जाते थे तो 5 रुपए के लिए भी लोग एक दूसरे से वो करते थे। तो दैट वाज द कल्चर। एंड मतलब मोस्ट ऑफ द पीपल, लाइक
मेरी विंग में लाइक वी वर 24 people, so maybe 2 or 3 people were from upper middle class, or I would say affluent class, but other than that everybody was from middle class. And now because a younger brother of my cousin of mine, he joined IIT Roorkee in 2017, sorry, so 17 to 21. एंड मैं गया था एक बार मिलने के लिए उससे, तो आई सॉ दैट कि यार अचानक से मतलब एवरीबडी इज वियरिंग लग्जरियस क्लोथ्स और ब्रांडेड क्लोथ्स पहन रहे हैं, ब्रांडेड वॉचेस हैं एंड एवरीथिंग. सो अपेरेंटली this is 100% happening. First thing I will agree with this, कि the class difference is being can be seen in IITs now or any other colleges. First of all, whether or not the reason is this 6th to 10th class, I would say up to some extent 100%, क्योंकि कहीं ना कहीं जैसा as I said कि difference तो create होता है. अगर आप 9th 10th में पढ़ाई कर रहे हो और from a good coaching और आप 100% इतने अच्छी coaching के साथ अगर prepare कर रहे हो, it will be obviously different from maybe let's say आप 9th 10th में government school से पढ़ के आए हो. So there will be 100% difference with that. क्या वो डिफाइन कर रहा है कि whether you will clear JEE or not? No, it will not. बट हाँ, उसकी वजह से परसेंटेज ऑफ पीपल और परसेंटेज ऑफ पीपल हु कैन अफोर्ड वो 100% इंक्रीज हो रहा है. सो आई वुड नॉट से कि पीपल हु कैन नॉट अफोर्ड वो नहीं जा पा रहे हैं, बट हाँ उनके चांसेस कम होते जा रहे हैं, उनके परसेंटेज प्रोबेबिलिटी 100% डिक्रीज हो रही है. Got it, got it, got it. थोड़ा आईआईटी के बारे में बात करते हैं. आई थिंक टॉक्ड अबाउट जेई प्रेप लॉट एंड यू हैव स्टडीड एट वन ऑफ द टॉप आईआईटीज. अब तो बहुत सारे, आई थिंक 30 या 31 आईआईटीज हो गए हैं. आई एम नॉट श्योर, मे बी, बट बैक देन आई थिंक 6 या 7 ही आईआईटीज थे हमारे टाइम पे. तो सात आईआईटीज थे आई थिंक हमारे टाइम पे. तो मतलब what how was the IIT culture back then? How is it different today? And what do you think have been your key takeaways from IIT Bombay? देखो, एक पार्ट आई थिंक आई विल बी एबल टू आंसर, हाउ वाज द कल्चर देयर और हाउ वाज द कल्चर एट दैट टाइम, वो आई विल बी एबल टू आंसर. बट आई डोंट थिंक आई विल बी एबल टू आंसर एट नाउ, क्योंकि एज आई सेड रुड़की भी मैं गया था, बट रुड़की इज आल्सो द वन ऑफ द मदर IITs, राइट? एंड द न्यू IITs I haven't got the chance to go there and see कि maybe let's say how IIT Jodhpur is doing for that matter, or any other new IITs. So not really sure. बट इफ यू टॉक अबाउट दैट टाइम, और आज से 10 12 15 साल पहले IITs कैसे थे और क्या एग्जैक्टली कल्चर था, टू थिंग्स वर वेरी ऑसम आई वुड से. मतलब जो मैं सोच के गया था ना, जैसे क्या होता है जब 11th 12th में पढ़ाई करते हैं, तो हमारे जो फैकल्टीज थे वो भी IITs से थे. दे यूज्ड टू आल्सो टेल द स्टोरीज. तो एक इमेज थी दिमाग में कि यार ऐसा होगा ऐसा होगा ऐसा होगा. और ऑब्वियसली बीइंग इन बॉम्बे और बीइंग इन IIT मुंबई, सो एक बॉम्बे का अलग से इमेज था, क्योंकि बॉलीवुड में या मूवीज में और सब में देखा हुआ था. जब वहां गए ना, सो आई फाउंड इट वेरी डिफरेंट. एंड वन ऑफ द रीजन वाज, जो मैंने बात किया कि बच्चे और जो मेरे कलीग्स थे या जो मेरे साथ में बच्चे स्टूडेंट्स थे, दे वर ऑल फ्रॉम द सिमिलर बैकग्राउंड. मतलब दे वर फ्रॉम डिफरेंट एरियाज. कोई कर्नाटक से है, कोई बंगाल से है, कोई महाराष्ट्र से है, आई वाज फ्रॉम राजस्थान. अलग अलग स्टेट से हैं. उनके जो कल्चर है वो बहुत डिफरेंट है, बट थिंकिंग बहुत सिमिलर है. उनके सबका एक जो आई वुड से स्टेटस है या क्लास था वो बहुत सिमिलर है. सोचने का तरीका बहुत सिमिलर है. एंड देयर वाज सो मच कनेक्ट एट दैट लेवल, जो कि लगता था कि शायद नहीं होगा, या एक जो बहुत हाई-फाई इमेज है आई वुड से, वो इमेज नहीं थी. दैट वाज वेरी ऑसम आई वुड से, क्योंकि कहीं न कहीं हो सकता था कि अगर वो इतनी हाई-फाई इमेज होती शायद मैं उसमें फिट भी नहीं हो पाता. शायद आई वुड नॉट बी एबल टू फील होम एट देयर, बीइंग थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर्स अवे फ्रॉम द होम. नंबर 1. नंबर 2 वाज कि at that time one thing was which was great was IITs से सोच के लगता है being the premier institute कि यार वहाँ सिर्फ पढ़ाई पढ़ाई होती होगी. And again it was very different when I actually got to see it. Students were great or doing everything greatly, whether it was arts, whether it was dance, whether it was sports, anything else. मतलब वो कुछ भी चीज, वो लोग डिजाइन बना रहे हैं, डांस कर रहे हैं, पेंटिंग कर रहे हैं, ड्राइंग कर रहे हैं, और एनीथिंग एल्स, यू नेम इट. एंड नॉट जस्ट दे आर डूइंग ग्रेट, दे वर डूइंग प्रोफेशनली. मतलब आई नो कि मेरे बैच के कई सारे बच्चे हैं, कई सारे स्टूडेंट्स हैं who are not engineer, who are not even marketeers or even professional job. They are actually pursuing their dreams. One of my batchmate is stand-up comedian as of now, is doing quite well. One of them is a model who is in their multiple advertisers and so on and so forth. So they are doing things which you will not expect from a IITian or from a premier engineer student. So this was great. And the IT culture was such a way कि it was actually helping all of us. मतलब मैं खुद की बात करूं, मतलब मैं स्कूल के टाइम पे कभी फुटबॉल
खेला भी नहीं था, बल्कि पता भी नहीं था यार फुटबॉल क्या होता है। मतलब ठीक है, पता था कि ये 2-4 प्लेयर्स हैं, नाम-वाम सुना है, रोनाल्डो वगैरह होते हैं, बट कुछ नहीं पता था। वहाँ जाके आई गॉट दैट आइडिया कि यार फुटबॉल होता है, पसंद आने लगा। आई स्टार्टेड प्लेइंग, आई प्लेड फॉर द द हॉस्टल टीम, आई प्लेड फॉर द कॉलेज टीम एंड सो ऑन सो फोर्थ। सो वो उस पर्टिकुलर चीज़ को ग्रो करने में कॉलेज का या पूरे उस एनवायरनमेंट का बहुत ज़्यादा हाथ था। And the same story was for so many other people, for anything else they were interested to in doing. So wonderful. Awesome. And obviously if anybody else who is preparing for IITs this as of now, they can add more ideas कि अभी कैसा चल रहा है, क्या चल रहा है, if they have some ideas. Awesome, man. Awesome. I think काफी similar experience था. I think across all IITs. मैं अपना experience when you were saying ना, तो मैं अपना experience याद कर रहा था. काफी similar experience था. It like but एक चीज जो I think after I something that I realized after graduating out of IIT was uh, and when I got into IIT also was कि IIT से पहले जो कोचिंग में जो academic culture होता है ना, academics जो in general होती है, वो एक टॉप टॉप लेवल पे होती है। आप टॉप टीचर से पढ़ते हो, टॉप एकदम ब्रेनस्टॉर्मिंग लेवल भी आपका टॉप लेवल पे चल रहा होता है। बट उन 4 साल में वंस यू गेट इनटू आईआईटीज, सडनली आईआईटीज का आई फेल्ट कि एकेडमिक लेवल सडनली आपकी कोचिंग से जब आप कंपेयर करेंगे 11 12 में, जब आप कोचिंग में जो तैयारी कर रहे हो, जिस तरह के एकेडमिक परस्यूट्स होते हैं, वो थोड़ा ड्रॉप कर जाता है। द एकेडमिक परस्यूट्स at some point I feel are not up to mark with what say an MIT or a Stanford has today, right? On the contrary, 11 12 में जो कोचिंग कल्चर है, वहां पे जो एकेडमिक्स है, that would be at par at whatever top कोचिंग आप ढूंढ लो पूरी दुनिया में, उससे शायद बेटर ही निकलेगा। तो एक थोड़ा सा गैप है, बट अपार्ट फ्रॉम दैट आई थिंक द कल्चर ऑफ IITs more than stands up to it, and the outcomes from IITs more than speak for themselves, right? uh, 100%. इसमें 100%, see, yes. Pritesh, actually this is very much similar or connected to what I was saying कि कॉलेज में जैसे मैंने बोला फुटबॉल। सो मैं जब 11 12 था, आई वाज ओनली प्रिपेयरिंग फॉर जेई, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, Hmm. फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, इसके अलावा कुछ नहीं था दिमाग में, राइट। एंड ऑब्वियसली मैं 12 घंटे 15 घंटे उस चीज के लिए लगा हुआ हूँ, तो ऑब्वियसली द लेवल ऑफ एकेडमिक्स वाज हाई। व्हेन आई वेंट इनटू आईआईटी, वहां पे आई गॉट द चांस फॉर द ओवरऑल डेवलपमेंट कि यार बाकी चीजें भी हैं लाइफ में, राइट। आई गेट टू सी ऑल ऑफ दैट, आई गॉट टू एक्सपीरियंस ऑल ऑफ दैट। एंड जब मैं फुटबॉल को अगर दिन में 3 घंटे देने लगा हूँ, 4 घंटे दूंगा, तो अकेडमिक्स ऑब्वियसली थोड़ा डाउन होगा, राइट। दैट वाज Yes. वन। एंड सेकंड, मेरे को जो एक और चीज लगी थी ना कि कॉलेज जेई में जब प्रिपेयर कर रहे थे, द फैकल्टीज वर वेरी मच पीछे पड़े हुए थे कि हमारी प्रोग्रेस के ऊपर। कल अगर तुम्हें ये सवाल नहीं आया था, आज आना चाहिए। अगर तुम्हें वो समझ में नहीं आया था, तो दे विल वो 3 बार एक्सप्लेन करेंगे, समझ में आए। जबकि कॉलेज में क्या हुआ कि प्रोफेसर्स वर एक्सपेक्टिंग अस टू डू ऑल ऑफ दैट। अगर तुम्हें समझ में नहीं आया ना, तो उसने बुक्स बताई हुई है, आप जाइए, घर जाइए और 6 पेज पढ़ के आओ और फिर से ट्राई करो। एंड वी वर, आई थिंक मे Hmm. बी अप टू सम एक्सटेंट, वर नॉट डूइंग दैट। तो ऑब्वियसली वो Hmm. चीज एक बार मिस हुई, फिर अगले सेमेस्टर में वो और ज्यादा होता गया। सो कहीं ना कहीं दैट इज मे बी क्रिएटिंग दैट डिफरेंस ऑफ एकेडमिक्स। Got it. So, Arpit, I think those are brilliant insights. To wrap things up, मैं एक बार समझना चाहूंगा कि what's your advice, um, what advice would you give to someone who's in 11th, 12th, and people who are beginning to think about college या career choices in general? यार देखो, दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं बीइंग इन कोटा। और रिसेंटली, मतलब मैं तो कोटा से लाइक बॉर्न एंड बॉट अप तो हुई, बट रिसेंट जो मैंने देखा है ना कोटा में, वन थिंग इज लॉट ऑफ पीपल आर टेकिंग थिंग्स टू सीरियसली। And when I say Hmm. too seriously, they are even going into anxiety, they are going into depressions, they are matlab, thinking life and death while preparing for IIT JEE or NEET or any other entrance exam. First thing, it is not that, it is not matter of life and death। आज भी आप, मतलब बहुत सिंपल सा, मैं तो फैक्ट है, नंबर्स की बात करूंगा। इंडिया में 100+ यूनिकॉर्न्स हैं। ईच एंड एवरी सिंगल यूनिकॉर्न फाउंडर्स आप लिस्ट निकाल के देखिए, लेस देन हाफ ऑफ दोज आर आईआईटीएंस। सो Hmm. ऑब्वियसली दैट मीन्स कि मोर देन हाफ आर नॉट आईआईटीएंस। उन्होंने भी कभी प्रिपेयर किया होगा, एंड दे गॉट इनटू अदर कॉलेजेस, एंड दे स्टिल बिल्ट यूनिकॉर्न, दे बिल्ट $1 billion businesses। and 100%, if you are building $1 billion business, you are intellectually या professionally you are brilliant। so ऐसा नहीं है कि this particular exam will define your life। people have been doing great with or without IIT। हाँ, being in IIT increases the chance a bit, increases the chance probability, because you get a network, you get to meet so many intelligent people, you get good exposure and so on and so forth। But even without that, you have great chances। So first is, don't
take it so seriously. Don't go into anxiety, don't go into depression. And even if you do, I'm 100% sure you have parents, friends, and somebody else to talk to. So go and talk to them, go and discuss, and take care of yourself. That is number one. Hmm. Number two is, while I'm saying don't take it seriously, but if you really want to clear, now if you really want to get into that top 100, top 200, 500 ranks, if you want to get into the best of the IITs or best of the medical colleges, you need to be serious about the studies. While it is not Hmm. matter of death and life or death, but you need to make sure you are giving 12 hours or 13, 14 hours a day. You need to be serious about कि यार, if I was not able to solve this question yesterday, आज मैं उसके ऊपर वर्क करूंगा, मैं उसको सॉल्व करूंगा. आपको अपने ऊपर काम करना पड़ेगा. अपने आप के ऊपर काम करने के लिए you'll have to be serious. सो वहां आपकी सीरियसनेस बहुत रिक्वायर्ड है. वहां आप कैजुअल नहीं हो सकते हैं. सो वो सीरियसनेस आपको मेंटेन करना पड़ेगा, रहना पड़ेगा सीरियस. एंड एग्जाम के बारे में उतना ज्यादा परेशान नहीं होना है. While you maintain the balance, this obviously very delicate balance to maintain. So if you maintain that balance, 100% you will be able to crack the exam. You will be successful and do great things in life. Awesome, man. Awesome, Arpit. I think those were brilliant closing words. I think our audience will find it really, really helpful I and hope so. very enlightening. Yes. Thank you. Hope Thank you so. for coming on Yeah. the show, Arpit. Thank you, man. Thanks a lot for having me here. Thanks.